Hello and welcome to your English learning channel. Name of the channel is English Grammar and Literature Teacher Amroha. This is the continuation of the poem which we started in part 1. In part 1 we covered only the first stanza of the poem called The Psalm of Life. In that part of the poem I have already told you that this poem is meant for the students of class 10 of UP board. The Psalm of Life is the name of the poem and the name of the poet is H.W. Longfellow, Henry Wadsworth Longfellow. In the first stanza, I told you that the poet tells that life is not a dream but life is something real. लाइफ इज़ वर्थ लविंग एंड वर्थ लिविंग. ज़िंदगी प्यार करने के लायक भी है और ज़िंदगी जीने के लायक भी है. लाइफ इज़ अ प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड. सो वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर लाइफ, वी हैव टू वैल्यू आवर लाइफ. दिस वाज सेड इन स्टैंजा 1. नाउ दिस इज स्टैंजा 2. In this stanza, the poet is saying, not enjoyment and not sorrow is our destined end or way. Not enjoyment and not sorrow. Enjoyment here means fun, delight, leisure, prosperity, good patches of time, zindagi ke अच्छे समय. And sorrow here means bad times, bad patches of life, hard times, adversity, rainy days is not our destined end or way. Destined end means the purpose of life, the pre-planned or predetermined way of life. पोइट कहना चाहता है कि न सुख और न दुख ये हमारे जीवन के उद्देश्य नहीं. दे आर जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ. जीवन के आवश्यक अंग हो सकते हैं. इन आवर जर्नी ऑफ लाइफ दे आर नथिंग बट आवर फेलो ट्रैवलर्स. हमारे जीवन की यात्रा में ये केवल हमारे हमराही हैं, सुख भी और दुख भी हमारे साथ साथ चलें. बट दे आर नॉट द पर्पसेस ऑफ लाइफ. अकॉर्डिंग टू H.W. Longfellow, द पर्पस ऑफ लाइफ इज नीदर हैप्पीनेस नॉट सॉरो. गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स दे आर ऑलवेज विद अस, बट द पर्पस ऑफ लाइफ इज समथिंग एल्स. वो जो जीवन का उद्देश्य है वो तीसरी लाइन में बताया, बट टू एक्ट. पर्पस ऑफ लाइफ इज एक्शन. वी हैव टू बी एक्टिव इन आवर लाइफ. वी डोंट हैव टू वेस्ट अवे आवर लाइफ. देयर मे बी लॉसेज इन आवर लाइफ. वी माइट हैव लॉस्ट आवर डियर वंस, आवर फ्रेंड्स, आवर रिलेशंस और एनी मटीरियल थिंग्स. बट डिस्पाइट दोज लॉसेस, we are not supposed to be idle, we are not supposed to waste away our lives. We have to live actively so that each tomorrow finds us farther than today. Means each tomorrow we should be farther than where we are today. या पोएट क्या नहीं चाहता है कि we have to march forward in our life. ज़िंदगी में आगे बढ़ना है. We have to be progressive. हमें ज़िंदगी में प्रगतिशील बनना है. Okay, and that progressiveness is of the three types. It may be physical development, it may be intellectual development, and it may be spiritual development. And as the poet was a preacher, he means to say that we have to develop in all the three fields, not just in one field. So we have to develop ourselves, we have to upgrade ourselves. We have to go to one next level. This is the meaning, this is the purpose of life. Now this was stanza 2. Now stanza 3. In the world's broad field of battle, इस स्टैंजा में पोएट ने दो खूबसूरत कंपैरिजन्स की हैं, दो तुलनाएं की हैं, दो मेटाफोर्स हैं. The first metaphor is in the first line here. The world has been compared to a big war field. This whole world is a big
war field where so many battles are taking place. So many battles are taking place. ये जो कई जंगें यहाँ पर हो रही हैं, तो दुनिया एक मैदान जंग है. H.W. Longfellow, very unlike Shakespeare in his play As You Like It, isn't saying that life is a big stage. He's saying life is a big battlefield. Not life, the world itself is a big battlefield. And the life is a battle, of course. So the world has been compared to a battlefield, and in the very next line, in the bivouac of life, life has been compared to a bivouac. And what exactly is a bivouac? Let me tell you with the help of this picture here. You can see here, this is the bivouac. In front of the bivouac, a soldier is sitting. Bivouac here means war camp, a temporary arrangement made of tents, etc. So life is a bivouac. जिंदगी एक वॉर कैंप की तरह है. वॉर कैंप में आप सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सारी सुविधाएं मिलेंगी. वॉर कैंप क्या है? आपको थोड़ा टेम्पररी रिलीफ देने के लिए है बैटल से. इट कैन नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल द destructive forces of nature or the destructive forces of the enemies. ना तो वो आपके दुश्मन से आपको बचा पाएगा बहुत ज़्यादा टाइम तक. They are specially made for the night time. तो कितना बचा सकता है आपको? So life is like a war camp, means a temporary arrangement. We are not here for permanent time. This is the bivouac, war camp or the tent. And you can see here, there are two battlefields here. One is here. They are soldiers with spears in their hands and shields in their hands. There are banners there. The other picture is also of the battlefield, a very similar way of engaging in a battle. So this is a battlefield, and the soldiers are engaged in battlefield, and there you are, bivouac, the war camp or the tent. So now it should be clear. The world is a broad field of battle. दुनिया की तुलना किससे की है? मैदानी जंग से. दुनिया एक मैदानी जंग है. ज़िंदगी एक जंग होगी, लेकिन दुनिया एक मैदानी जंग है, वो जगह जहाँ जंग लड़ी जाती है. एंड दिस बैटल, ये जो बैटल है, यहाँ बैटल से मतलब सिर्फ जंग से नहीं है. ये हार्डशिप्स हो सकते हैं, डिस्प्यूट, स्ट्रगल्स, क्वारल्स, अनरेस्ट इन लाइफ. ज़िंदगी में बहुत से ऐसी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, हार्डशिप्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, क्वारल्स हैं, जिन्हें मिलाकर के नाम बैटल दिया जा सकता है. और ये बैटल ज़रूरी नहीं कि एक्सटर्नल हो. कभी कभी आपका जो अपोनेंट है, आपका जो एनिमी है, आपके अंदर भी हो सकता है. दो तरह के बैटल्स हो सकते हैं. एक्सटर्नल, जहाँ आपका एनिमी या आपका जो अपोनेंट है, विरोधी है, वो बाहर है, इट्स नॉट विद इन यू, तो वो एक्सटर्नल बैटल हो गया. और इंटरनल बैटल वो हुआ जहाँ आपका विरोधी या आपका जो दुश्मन है आपके ही अंदर है. यू आर बैटलिंग अगेंस्ट योर ओन सेल्फ. आप अपने आप से ही जंग लड़ रहे हैं. तो दुनिया एक मैदानी जंग है, लाइफ एक जंग है, और जंग भी दो तरह की हो सकती है, एक्सटर्नल और इंटरनल. So we are almost always in some kind of battle, mostly the internal battle. In the bivouac of life, life is a kind of war camp. This is the another metaphor here. मैंने बोला ना ऊपर कि एक मेटाफोर ऊपर की लाइन में है, वर्ल्ड की तुलना बैटलफील्ड से की गई है, और यहाँ दूसरी लाइन में लाइफ की तुलना जो है वो वॉर कैंप से की गई है. तो क्या करना है? बी नॉट लाइक ड्रम ड्रिवन कैटल. इन दिस वर्ल्ड, इन दिस लाइफ, वी हैव नॉट टू बिहेव लाइक कैटल हु आर ड्रिवन. हमें जानवरों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए जो बेज़बान हैं. वो अपनी बात कह नहीं सकते, बट हम तो कह सकते हैं अपनी बात. दिल में कोई दर्द है, दूसरे से कह सकते हैं. हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हमें जहाँ चाहे घसीट कर ले जाए, खदेड़ कर ले जाए. काउबॉयज़ हैं, शेपर्ड्स हैं, तो वी शुड, आवर लाइफ शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय देम. वी शुड बी एबल to raise our voices, to raise our concerns,
हमें अपनी बात कहनी है, दूसरे के सामने रखनी है, ऐसे ही सिर नहीं झुका लेना, सरेंडर नहीं कर देना है लाइफ के सामने कि हाँ ठीक है मैं मार लो, नॉट लाइक दैट। लाइफ बहुत प्रेशियस चीज़ है, इसको प्रिजर्व करना है। कैसे? बी अ हीरो इन दिस लाइफ। ये जो स्ट्रगल है, ये जो बैटल है लाइफ का, इसमें हमें एक हीरो की तरह रहना है, ठीक है, एक नायक की तरह उभर कर आना है, ना कि जानवर की तरह अपना सिर झुका लेना है। ओके, किल मी, नॉट लाइक दैट। ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है। आइए स्टैंजा नंबर 4 पर आते हैं। देखिए कैटल की बात की अभी, तो कैटल जानते होंगे आप, कैटल ये सब कैटल है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर काउ बॉयज़ हैं, शेपर्ड्स भी कहे जाते हैं। शीप गोट्स को जो गाइड करते हैं वो शेपर्ड्स होते हैं, और बाकी काउज, बफलोज एट्सेट्रा इनको लीड करने वाले काउ हर्ट्स भी कहलाते हैं, काउ बॉयज़ भी कहलाते हैं। तो दीज आर कैटल। तो हमें कैटल की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारनी है जैसे इन्हें काउ बॉयज़ जैसे चाहे हैंडल कर लें। अब आते हैं स्टैंजा 4 जो कि कंक्लूडिंग स्टैंजा है, वो उनका आखिरी स्टैंजा है बिल्कुल। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait। चौथा और आखिरी स्टैंजा है ये। इसमें बताया कि let us then be up and doing। अप का मतलब है यहाँ पर अलर्ट, कॉन्शियस, कॉशियस, और डूइंग का मतलब एक्टिव। हमें अप एंड डूइंग रहना है, अलर्ट भी रहना है यानी कॉशियस और कॉन्शियस भी रहना है, और डूइंग यानी एक्टिव भी रहना है। ऐसा नहीं कि एक्टिव तो हैं, नींद में चलना है, नॉट लाइक दैट। मेंटली अलर्ट भी रहना है और साथ ही साथ एक्टिव रहना है। दिस इज द काइंड ऑफ लाइफ वी शुड बी लिविंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट। विद हार्ट, हार्ट हियर मीन्स प्रिपेयर्डनेस, अपने दिल को प्रिपेयर्ड, रेडी रखना है, ठीक है। यहाँ हार्ट सिंबल भी है करेज का, अपने दिल को करेजियस रखना है फॉर एनी फेट, किसी भी तरह की फेट के लिए। हमारा काम है एक्शन करना, ठीक है। उसमें हमें सक्सेस मिल भी सकती है, सक्सेस नहीं भी मिल सकती। तो हमें अपने हार्ट को दोनों तरह की सिचुएशंस के लिए रेडी रखना है। ऑफ कोर्स आवर एम शुड बी टू सक्सीड, बट we should prepare our heart for the contrary situation too. It is not always that we may come out successfully। हो सकता है हम फेल हो जाएं, तो हमें हार्ट को अगर पहले से तैयार कर रखा है फेलियर के लिए, तो it will not be very shocking, very frustrating for us, and we will carry on living। So क्या करना है, दोनों टाइप की सिचुएशंस के लिए अपने हार्ट को तैयार रखना है, बोथ सक्सेस एंड फेलियर, ठीक है। एक्शन पर हमें फोकस करना है। रिजल्ट्स आर नॉट ऑलवेज इन आवर हैंड्स, स्टिल अचीविंग, even if we fail in our life, even if we fail in getting our goal, we should still be pursuing it, we should still be chasing it, we should still be running after it, and someday we will succeed। So this is what the poet wants to say, कि हो सकता है कि हमें सफलता ना मिले, असफलता मिले, स्टिल परस्यूइंग नहीं, फिर भी हमें परस्यू करते रहना है, हमें चेस करते रहना है अपने गोल को, एंड अल्टीमेटली वी मे अचीव आवर गोल। लेकिन एक बात लास्ट में बताई है पोइट ने, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। वी हैव टू लर्न हाउ टू वर्क हार्ड, ठीक है। हाउ टू वर्क हार्ड, ये वर्किंग हार्ड इज़ नॉट सफिशेंट, बट वर्किंग हार्ड इन द राइट डायरेक्शन इज ऑल्सो नेसेसरी। सिर्फ कठिन परिश्रम से ही काम नहीं चलने वाला, कठिन परिश्रम इन द राइट डायरेक्शन, दिस वी हैव टू लर्न। एंड वी हैव टू लर्न वन मोर थिंग, दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन वर्किंग हार्ड, टू वेट। To wait here means to be patient. Results may not come to us overnight. They may take time. And if we are on the right path, अगर हम सच्चे रास्ते पर हैं, सही रास्ते पर हैं, then the chances are that the results will take
longer time. The fruit of our labor will come to us maybe much longer if we are on the right path. So, the poet is preaching us to be active in life and to be on the right path. We should be having 3 or 4 important things, that is self-respect, self-confidence, courage and trust or faith in God. This is the gist of the poem, and the summary is that the Psalm of Life carries a message of hope and encouragement. It encourages people to live their lives to the fullest using the short time we have here on earth as a gift. The poem is a message to future generations to find work and action that gives them purpose and passion. No life is meaningless. Each life is meaningful. Live your life to the fullest and thank your God that He has given you a life. Use it in the service of God and humanity. Do your level best and all the best will happen to you. Thank you.